জিজ্ঞাসা কিছু একটা করেছিলে, আমার মনে পড়লো তোর তোকে দেখে। আসলে সারাদিন এমন চলে যায় না, ওই মানে একটা জিএসটি ইমপ্লিকেশন জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেস ইমপ্লিকেশন ডেল্টা কর্পোরেশনস এর উপরে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ক্যাসিনো বিজনেসে জিএসটি বাড়িয়েছে, তাহলে এর ইমপ্লিকেশন কি হবে? হ্যাঁ, মানে রিসেন্ট যেটা জিএসটি কাউন্সিল অ্যানাউন্স করেছিল যে 28% জিএসটি হুম। অনলাইন গেমিং আর ক্যাসিনোর উপর। এবার অফলাইন আচ্ছা ক্যাসিনোতে আগে থেকেই 28% জিএসটি ছিল, আচ্ছা। কিন্তু এবার মানে ক্যালকুলেশন করার মেথডটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। আগে প্রাইজ মানির ওপর জিএসটি ক্যালকুলেশন হতো, হুম কিন্তু এবার জিএসটি কাউন্সিল বলছে যে না না, 28% জিএসটি এন্ট্রি ভ্যালুর উপর হবে। মানে যদি আমি 1,000 টাকা দিয়ে বেটিং করতে যাই, হুম তাহলে হুম। 1,000 টাকা থেকে 28% কেটে নিয়ে মানে 72 টাকায় আমি খেলতে পারবো। তার মানে আমাকে যদি আচ্ছা 72 টাকা দিয়ে কামাতে হয়, আমাকে 40% কামাতে হবে, তবে আমি ব্রেক ইভেন করতে পারবো। এবার ওই হুম। নিয়ে অনেক ঝামেলা চলছিল। আচ্ছা আচ্ছা। ইফেক্ট তো পড়বেই, তবে অফলাইন গেমিং এ যেটা বলছিস তুই, অফলাইন গেমিং এ ডেল্টা কর্পোরেশন মানে এই এই লাইনে মানে একাই অলমোস্ট আছে অফলাইন ক্যাসিনো হ্যাঁ বিজনেসে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এর হুম। প্রপার সেরকম কোনো কম্পিটিটর নেই। তো সেক্ষেত্রে এর বিজনেসটা মোটামুটি একটা প্রত্যেক বছর একটা টাইমে না বাড়া কমা খুব হয়। আমি ডেলটা অনেকদিন হোল্ড করেছিলাম। আর রইলো অনলাইন গেমিং এর, অনলাইন গেমিং নিয়ে গভর্নমেন্ট অনেক রকমের স্টেপস নিচ্ছে। স্পেশালি এই যে দেখ না, এই যে এগুলো, এই যে জঙ্গলি রামি, তারপরে তো ড্রিম 11, হ্যাঁ এইগুলো নিয়েও এক্স্যাক্টলি সরকারের তরফ থেকে প্রচুর মানে কি বলবো, গভর্নমেন্টও দেখছে ভাই পাবলিক যখন এত পয়সা লাগাতে চাইছে আমরাও কিছু কামিয়ে নিই। গভর্নমেন্টও ছাড়বে না, কারণ এখন তাই ইন্ডিয়া তো এটা, এখানে পয়সার দরকার সববার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এর ইমপ্লিকেশন কি হতে পারে আমি একটু স্টাডি করে বলবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলি হ্যাঁ কথাটা? স্যার। ঠিক আছে। স্যার ট্যাক্স এরকম ভাবে ক্যালকুলেশন কি হয়? মানে আমরা যদি যেমন ট্রেড করছি, আমাদেরকে কোম্পানি যদি বলে আগে তুমি আমাদের ব্রোকারেজ জিএসটি এসটি সব দিয়ে দাও, তারপরে সেই টাকায় ট্রেড করো। নর্মালি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন তো ওরকম হয় না, ট্যাক্স সবসময় সাপ্লাইয়ের উপরে হয়। সাপ্লাই, সাপ্লাইটা এস্টাবলিশ করতে হবে। এখন দেখি, আমি আমি পুরো ব্যাপারটা এখনো পড়িনি, আমাকে নন্দন বললো যখন আমি একবার গোথ্রু করি, আমি গোথ্রু করে দেখে বলবো কি এক্স্যাক্টলি ঘটনাটা কি ঘটেছে, মানে কাউন্সিল কি বলেছে, আর সেটা নিয়ে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করবে কিনা। মানে খেলে যেটা উইন হবে সেটার উপরে বেসিক্যালি কনসেপ্টটা বলতে চাইছে। এবারে ট্রানজাকশনস এর উপরে ওরা কি মানে পারচেসের উপরেও তো জিএসটি লাগানো যায়, সেটা অসুবিধা নেই। ধর আমি যখন কোনো জায়গাতে পেমেন্ট করছি, তো আমি তো অ্যাকচুয়ালি একটা পারচেস করছি, তো পারচেসের উপর তো জিএসটি হয়। কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ওটাকে কিভাবে করতে চাইছে সেটা এখন দেখার, মানে ভ্যালুয়েশনটা ওরা কি করবে একবার দেখি জিনিসটা। নন্দন, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, পারচেসের উপর হয়, কিন্তু মানে ক্যাসিনোতে যেটা আমরা চিপস বাই করি হুম পেমেন্ট করে, এবার গভর্নমেন্ট কাউন্সিলের মানে জিএসটি কাউন্সিলের কথা হচ্ছে যে ধরুন আমি 100 টাকা চিপস বাই করলাম, আমি 28% জিএসটি দিয়ে দিলাম। হুম। এবার নর্মালি আমরা প্রোডাক্ট কিনে যদি ফেরত দিই, তাহলে জিএসটি তো সেট ব্যাক হবে, পরে অ্যাডজাস্ট হ্যাঁ করা হ্যাঁ, হবে জিএসটি। আইটিসি, হ্যাঁ আইটিসি ক্লেম, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে হবে না বলছে। এখানে আইটিসি ক্লেম হবে না, হ্যাঁ, কি মানে করে হবে? মানে এখানে ধরুন এখানে এখানে তো তুই কাকে হ্যাঁ, বিক্রি করবি? তুই ফার্দার মানে সেলিং ধরুন থোড়ি করবি। ফার্দার সেলিং হবে না। এবার ধরুন কেউ 1,000 টাকা চিপস কিনে নিয়ে এলো, এবার সে 1,000 টাকার হয়তো খেললো না, 300 টাকা চিপস নিয়ে খেললো আর হুম। 700 টাকা ফেরত করে দিল। তো 300 টাকার ভ্যালুর উপর ক্যালকুলেশন হবে নাকি 1,000 টাকার উপর হবে, এখানে মানে ওটাই ক্লিয়ার না মার্কেটে। মানে অ্যাকচুয়ালি জিএসটি কাউন্সিল কি বলতে চাইছে আর কেন, মানে জিএসটি ইমপ্লিকেশনটা লোকের লজিক্যাল মনে হচ্ছে না। মানে অনেক গভর্নমেন্টের ইয়েতে মানে প্রোটেস্ট করেছে যে জিএসটি ইমপ্লিকেশনটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। হ্যাঁ বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট এটা, বেসিক্যালি এগুলো তো এক ধরনের মানে কি বলবো, মানে স্পেকুলেশন বিজনেস, ওই জন্য গভর্নমেন্ট এগুলোকে একটুখানি নিজের মতো করে কন্ট্রোল করতে চাইছে। আমি দেখেছি, আমি স্টাডি করি, আমি তোর কাছে কোনো রিপোর্ট থাকলে আমাকে একবার পাঠিয়ে দিস তো, কোনো রিপোর্টের লিঙ্ক থাকলে বা নিউজ থাকলে আমাকে পাঠিয়ে দিস, তাহলে আমি আর খুঁজবো না, আমি দেখে নেবো একবার। আর তুই যখন স্টাডি করছিস আমাকে একটু লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিবি। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। সুমিত আবার কি সব পোস্ট করছে রে, বেশ সাহস। সুমিত খালি প্রফিটই প্রফিট দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে নাকি? সুমিতের এখন ব্যাপারই আলাদা। আচ্ছা চল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। আচ্ছা দেখো,
तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन इक्विटी डेरिवेटिव। और इक्विटी डेरिवेटिव में आज क्या बात होगा सर, वही कंटिन्यूएशन होगा, मैक्स पेन का कंटिन्यूएशन। मैक्स पेन एंड पीसीआर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, बेसिकली मैक्स पेन स्टार्ट करना है। कल आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का आइडिया लग गया है ना सर। यस्टरडे आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको मार्केट से मिल जाएगा सर, ठीक है। तो जब भी आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा को देखो ना, चाहे ओपन इंटरेस्ट हो चाहे वॉल्यूम हो, ये दोनों डेटा ना मार्केट में बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। मैंने स्पेशली ओपन इंटरेस्ट करेंटली, वॉल्यूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओपन इंटरेस्ट जो चेंजेस होता है ना सर, उसमें आप जरूर गौर करें कि मार्केट किस हिसाब से पोजीशंस पे है, मैंने पुट में, कॉल में, बाई साइड, सेल साइड, दोनों साइड में, ठीक है। तो इस तरह का चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। जिस पॉइंट पे मैंने लास्ट दिन छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। ओके, स्क्रीन शेयर है सर, एक बार मुझे कंफर्म करोगे? हाँ सर। अच्छा देख, आज ना मैक्स पेन का कैलकुलेशन करेंगे, वेरी पॉपुलर इन मार्केट। बेसिकली ये लास्ट दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैक्स पेन कॉन्सेप्ट जो है ये 2004 अराउंड ये डेवलप हुआ था, और ये मेनली ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके बना हुआ है, जो मैंने लास्ट दिन थोड़ा सा आप लोगों के साथ रीडिस्कस कर लिया, एक तरह का है ना, रीडिस्कस कर लिया। जो लोग ऑलरेडी बेसिक कर चुके थे उनको पता था, बट मैंने एक बार फिर से बता दिया कि ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। अब मार्केट में वही चीज लाखों करोड़ों में होता रहता है। नाउ 2004 में जब फर्स्ट टाइम में मैक्स पेन थ्योरी आया था, उस टाइम पे ये थ्योरी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर एकेडमिक पर्सपेक्टिव में इसको डील किया गया है, मैंने ना तो कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और ना ही कोई यूरोपियन यूनिवर्सिटी और ना ही इंडियन या जापान, ठीक है, जहाँ जहाँ मेन मेन, इवन चाइना ऑल्सो, तो कहीं पर भी ये एकेडमिक लेवल में इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन मार्केट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके हिसाब से ये सिचुएशंस बार बार देखा गया है, तो ये थ्योरी दिन बे दिन काफी पॉपुलर होता गया है सर, मैक्स पेन थ्योरी। अब मैक्स पेन मैंने वही बंगाली में एक कहावत है, आप लोग जानते हो, जो लोग बंगाली बैकग्राउंड से हो दे मस्ट नो, ये कहते हैं कि कारोर पौष मास और कारो सर्वनाश, ऐसा एक कहावत है ना सर। এরকম একটা কথা আছে তো, কারোর পৌষ মাস কারো শ্রাবণ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ऐसा बात, बट काइंड ऑफ ऐसे ही सिचुएशंस यहाँ पर होता है। मैं जस्ट फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस ये मैंने बोला, ऐसे बोलना नहीं चाहिए इस तरह का लैंग्वेज, मैंने किसी का सर्वनाश क्यों चाहिए सर। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि जब बायर को गेन होता है, सॉरी, जब सेलर को गेन होता है बायर का लॉस होता है, और उस पॉइंट पे कुछ लॉजिकल सिचुएशन आपके सामने रखा गया था कि ये देखा जाता है कि एक्सपायरी टाइम पे 90% बायर जो होते हैं, ऑप्शन बायर, चाहे वो सेलर हो, सॉरी, कॉल बायर हो या पुट बायर हो, क्या करते हैं, उनका अल्टीमेटली वो वर्थलेस हो जाता है। और अगर बायर का वर्थलेस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर को गेन होता है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक इन्फरेंस किया गया था, जो मैंने लास्ट दिन आपको हल्का सा बताया था कि सर ऐसा ऐसा होता है। एक सेकंड से पेन ले लूँ थोड़ा। अब जरा देखिए मैटर को, ठीक है। तो मैक्स पेन थ्योरी जो है ये 2004 में बना है, और ये बहुत ही यंग एक थ्योरी है, ठीक है, काफी न्यू थ्योरी है। तो यहाँ पर ना थ्योरी ऑप्शन पेन स्टेम्स कोरोलरी टू द बिलीफ, कोरोलरी टू द बिलीफ माने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए किसी का डिसीजन बदलना, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोरोलरी। तो देखा गया है कि 90% ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, अब ये देखा गया है, अब इसके ऊपर बेस करके एजम्पशंस बन रहा है मार्केट में कि अगर 90% ऑप्शन वर्थलेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा ही देखा जाता है, तो फिर क्या वहां से हम लोग कुछ लॉजिकल डिडक्शंस या कुछ लॉजिकल एजम्पशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशन ऐसा था, एट एनी पॉइंट ओनली वन पार्टी कैन मेक मनी, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही पार्टी पैसा बनाता है, दूसरा पार्टी का लॉस होता है।
आइदर वन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, बट नॉट बोथ, दोनों पैसा नहीं कमा सकता वन पॉइंट पे। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट द सेलर्स आर दी वंस मेकिंग मनी। मैंने जो बोला जा रहा है कि 90% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, ठीक है, तो अगर एक्सपायरी में वर्थलेस होगा तो बायर तो गया सर काम से, तो सेलर को कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एजम्पशंस बना जा रहा है। इफ ऑप्शन सेलर्स टेंड्स टू मेक मैक्सिमम मनी, ये सब लास्ट दिन बोला था, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलर्स मैक्सिमम मनी गेन करता है, ठीक है, then it also means that the price of the options on the expiry day should be driven to a point where it would cause least amount of loss to option writer। इसका मतलब फिर से वही आता है सर कि अगर ऑप्शन ट्रेडर मैक्सिमम मनी बनाता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि ऑप्शन एक्सपायरी डे पे, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट पे आता है जहां पर ऑप्शन सेलर को मिनिमम या लीस्ट लॉस होता है। लीस्ट माने मिनिमम, ठीक है, एट लीस्ट है ना, बोलते हैं ना हम लोग एट लीस्ट, तो वही लीस्ट मिनिमम लॉस होगा, ऐसा एक पॉइंट मार्केट में जनरेट होता है। ये एजम्पशंस है, डिडक्शंस है। डिडक्शंस माने एक स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके आप कुछ डिडक्शंस ले रहे हो यहां से, ठीक है। अच्छा, इफ पॉइंट 2 इज ट्रू, माने अगर ये पॉइंट सही है, देन इट फर्दर इंप्लाइज दैट द ऑप्शन प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड एटलीस्ट एक्सपायरी डे के आसपास। पॉइंट 4 कहता है, पॉइंट 3 सही है। इफ दिस इज ट्रू, if this is true, then it further implies that there exists a group of traders जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ऑप्शन प्राइस को मैनिपुलेट करता है एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर फोकस हो रहा है ना, राइटर के ऊपर। If such group exists, then it must be option seller, since it is believed that they are the ones who make maximum money, consistently making money trading options, consistently। ये भी एक क्या हो रहा है सर, ये assumption बन रहा है, क्योंकि 90% एक्सपायरी में आउटफ्लेस होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के बारे में इतना सारा पॉइंट जनरेट हो जा रहा है। लेकिन सर ये कैसे होता है, इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं लास्ट दिन आपको जीरो सम गेम भी बताया था, है ना। जीरो सम गेम मैंने किसी का प्लस होता है तो किसी का माइनस होता है, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट जीरो होता है। और ये जीरो सम गेम क्या है आप लोगों को पता है ना। एक साइट है, आप लोग इसमें भी जा सकते हो, इसका नाम है optionpain.com। ये फॉर्मली ऑप्शन पेन को डिफाइन किया गया है ऑप्शन मार्केट के बारे में। वेल्थ ट्रांसफर बिटवीन ऑप्शन बायर एंड सेलर इज अ जीरो सम गेम। On option expiration day, the underlying stock price often moves towards a point that bring maximum loss to option buyers, and the specific price calculated based on all outstanding option in the market is called option pain. Option pain is a proxy for the stock price manipulation targeted by the option selling group। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस साइट में विजिट करो सर, optionpain.com। चलो देखते हैं साइट है कि नहीं। कभी आप लोग विजिट किए हो क्या इसमें, एनीवन? optionpain.com, maximumpain.com बता रहा है, ऑप्शन पेन तो नहीं बता रहा है। मेरा स्पेलिंग गलत हो गया क्या? optionspain.com, इसको कॉपी कर लेते हैं। साइट ओपन नहीं हो रहा है, चलो ठीक है छोड़ो, मे बी किसी कारण से बंद हो गया होगा या समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स नॉट प्रॉपर नहीं लग रहा ये, जो भी है छोड़ो सर। मे बी पहले शायद था, अभी नहीं है, कुछ सिचुएशंस होगा, बट ओके। अभी आप लोगों को बात तो कर ही रहे हैं, बट फिर भी क्या क्या होता है ना, जैसे कल सुमित ने एक वेबसाइट बताया, अच्छा वेबसाइट था, क्या रिप्ले वगैरह हो रहा था उस दिन बता रहा था। अच्छा ठीक है, देखो तो मैक्स पेन का कैलकुलेशन देख लो। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू कैलकुलेट द मैक्स पेन वैल्यू। यू मे फाइंड दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट धीरे धीरे ना आप बने रहो, आप देखना धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो लेकिन पेशेंस आप लोगों को पता है, अगर पेशेंस रखोगे तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है मैक्स पेन कैलकुलेशन का? सबसे पहले ना आपको क्या बता रहा है कि लिस्ट डाउन द वेरियस स्ट्राइक्स ऑन द एक्सचेंज एंड नोट डाउन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ बोथ कॉल्स एंड पुट्स फॉर दी स्ट्राइक्स। आप कोई भी जितना सारा स्ट्राइक्स मार्केट में होता है ना,
ठीक है, आप लोगों को पता है ऑप्शन चेन के अंदर आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस देख लेते हो ना। तो क्या कहता है सर, they just ask you list down the various strikes on the exchange and note down the open interest of both calls and puts for these strikes, कॉल का भी पुट का भी। अब जो भी स्ट्राइक आप चूज करते हो, स्टेप 2 क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द स्ट्राइक प्राइस दैट यू हैव नोटेड, जितना स्ट्राइक आप नोट डाउन करोगे, एज्यूम दैट द मार्केट एक्सपायर्स एट दैट स्ट्राइक। यहाँ पर अजम्पशन लगाना पड़ेगा आपको कि आप एज्यूम कर लो कि मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी करते करते भी आप लोगों को आदत हो गया होगा कि अगर इस पॉइंट पे एक्सपायर होता है एज पर योर डायरेक्शन, ठीक है, आप जो डायरेक्शन चूज करते हो। स्टेप 3, कैलकुलेट हाउ मच मनी इज लॉस्ट बाय ऑप्शन राइटर। कैलकुलेट ये भी करो कि ऑप्शन राइटर कितना पैसा लॉस कर रहा है, बोथ कॉल ऑप्शंस एज वेल एज पुट ऑप्शंस, assuming the market expired as per the assumption in step 2। मान के चलो कि आप जो स्ट्राइक चूज कर रहे हो मार्केट उसी में खत्म हो रहा है, माने एक्सपायर हो रहा है एक्सपायरी डे पे। स्टेप 4, एड अप द मनी, जितना लॉस कर रहे हो उसको ऐड करो बाय कॉल एंड पुट ऑप्शंस राइटर, इसको ऐड करो। स्टेप 5, आइडेंटिफाई द स्ट्राइक एट विच द मनी लॉस्ट बाय ऑप्शंस राइटर इज लीस्ट। आइडेंटिफाई द स्ट्राइक एट विच द मनी लॉस्ट बाय ऑप्शन राइटर इज लीस्ट, माने अब जितना सारा अलग अलग स्ट्राइक आपने लिया था उसमें से वो वाला स्ट्राइक को आइडेंटिफाई करो जिसमें ऑप्शन सेलर को सबसे कम लॉस हुआ है, सबसे कम लॉस हुआ है। डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझ में और आ जाएगा। ये 5 स्टेप दिमाग में रखो सर, ठीक है, जरूरत पड़ने से मैं फिर से बताऊंगा एक बार, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से हर चीज में क्या होता है ना, इजी लगता है। अभी एक स्टेप है, अब ये स्टेप को कैसे करना है चलो देखते हैं। So this level at which least amount of money is lost by option writer is the point at which maximum pain is caused to option buyer। जिस पॉइंट में सेलर को कम से कम लॉस होगा उस पॉइंट पे बायर को मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस है ना, वही पोस्ट मास ऑर्गोनास टाइप का। So therefore this is the price at which the market is most likely to expire। Let us take a very simple example to understand this। चलो यहाँ पर 3 निफ्टी स्ट्राइक लिया गया है, पुराना डेटा है सर, बट मैटर वही है। आज आप इस सेम चीज को आज के हिसाब से कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। मार्केट आपके सामने खुला है, ठीक है, ओपन मार्केट है। आप सिमिलर तरीके से आज के हिसाब से ऐसे कितना चल रहा है निफ्टी आज हमारा निफ्टी 19,700 में चल रहा है, ठीक है, 19,750। हाँ, एकदम धड़ाधड़ गिर रहा है सर, ठीक है। देखो तो सिमिलरली आप आज के हिसाब से भी मार्केट में स्ट्राइक चूज करके ले सकते हो। तो फिलहाल आप एग्जाम्पल को देखो, फिर इस एग्जाम्पल को आप रियल लाइफ में अप्लाई करना, देखना, आपका होम घर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आता रहेगा। यहाँ पर 3 स्ट्राइक लिया गया है सर, ठीक है, 3 स्ट्राइक है, 7,700, 7,800 एंड 7,900, ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाता है ना मार्केट से। ऐसे यहाँ पर अगर आप जाओगे सेंसिबल में मिल जाता है ना सर, कहाँ पर मिलेगा देखो, ये अलग अलग स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये देखो, ये कितना 19,700, 750 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, दिख रहा है ना, हर डेटा में आपको देखो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल का एज वेल एज पुट का, कितना परसेंटेज चेंज होगा वो भी डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो हर चीज का, इवन एक्सपायरी डेट के हिसाब से भी आपको डेटा मिलता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, ये डेटा को बाद में एनालिसिस करते हैं, पहले ना थोड़ा सा पढ़ लो, जान लो सर। तो जिस तरह से ये डेटा मिल रहा है इसी तरह से आपको डेटा को फाइंड आउट करना है, और ये एनएसई के साइड में भी मिलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो 7,700 स्ट्राइक, 7,800 स्ट्राइक, 7,900 स्ट्राइक, इसमें कॉल ऑप्शंस को ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज पुट ऑप्शन को ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जितना डेटा आपके सामने है, ये डेटा को आपको क्या करना है, जुगाड़ लगाना है। अब आपको यहाँ पर अभी क्या करना है सर, आपको एजम्पशन लगाना है कि मार्केट एक्सपायर करेगा किस में।
तो देखो सर, आपने 7,700 चूज किया, 7,800 भी चूज किया, 7,900 भी चूज किया। तो आप एक काम करो, पहले 7,700 को ले लो, assume market expire 7,700, assumption करो। Remember when you write a call, माने जब आप कॉल को सेल करते हो, you will lose money only if the market moves above the strike, है ना। आप जब कॉल सेल करते हो, आप पैसा तभी लॉस करोगे जब मार्केट स्ट्राइक से ज्यादा हो जाएगा, 7,700 से ज्यादा हो जाएगा तो आपका पैसा आप लॉस करोगे। ये आप लोगों को पता है, आप लोग काफी स्ट्रेटेजी पढ़ के आए हो सर। So when you write a put options, you will lose money only when the market moves below the strike price. अब पुट जब आप बाय करोगे तब आपका क्या कॉन्सेप्ट है ना, सॉरी पुट जब आप सेल करोगे तो आपका पैसा तब लॉस हो जाएगा जब मार्केट स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे चला जाएगा, है ना, बिलो में चला जाएगा। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आप सबको पता है क्या सर? ये जो कॉन्सेप्ट है ये पता है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। है ना, ये हम लोग काफी स्ट्रेटेजी पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ सर। तो देयरफॉर मार्केट एक्सपायर एट 7,700, अगर मार्केट 7,700 में एक्सपायर करता है, नन ऑफ द कॉल ऑप्शन सेलर विल लॉस मनी, है ना, क्योंकि 7,700 से अबव में अगर एक्सपायर करता तो कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता, which means call option writer of 7,700, 7,800 and 7,900 strikes will retain the premium receipt। जो प्रीमियम उनको रिसीव होगा वो रिटर्न करेगा वो, ठीक है। So however the put options writer will be in trouble। Let's start with the 7,900 put options writer, ठीक है। ये 7,700, 7,800, 7,900 अगर आप कॉल में देखोगे तो हर चीज में वो प्रीमियम रिटर्न करेगा अगर वो 7,700 में एक्सपायर करता है, यस और नो। मार्केट 7,700 में भी एक्सपायर करे, 800 में भी, 900 में भी, प्रीमियम जितना वो कलेक्ट करता है, नॉर्मली जो सेलर होता है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है, यस और नो। है सर। है ना, तो जितना प्रीमियम आप कलेक्ट करोगे वो प्रीमियम आपका रह जाएगा अगर मार्केट इस सिचुएशंस में जाता है तो, है ना। अब पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर 7,900 पुट ऑप्शंस, ठीक है। ये अगर कोई सेलर बनता है, पुट सेलर 7,900 पुट को ये स्ट्राइक है ना। अब 7,700 एक्सपायरी पे 7,900 पुट ऑप्शन सेलर 200 पॉइंट लॉस करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 200 पॉइंट तो हो ही रहा है ना, 7,900 इधर 7,700, 200 पॉइंट का लॉस है। और पुट में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, है सर। तो सिंस ओपन इंटरेस्ट का हिसाब यहाँ पर मिला है, चलो देख लेते हैं। ऐसे ये हिसाब मैं कहाँ से लिया, ये नॉर्मली वेबसाइट में कलेक्ट करना पड़ता है, एनएससी के साइट वगैरह में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी हमारे सामने एक था ना हिसाब, ये वाला पुट ऑप्शन 7,900 में कितना था सर, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट का 2,55,9,375, है ना, 2,55,000 नहीं सॉरी 25,59,375, 25,59,375 यही है ना। तो ओपन इंटरेस्ट बता रहे हैं 25,59,375। अच्छा, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हुआ, मैं उनको बता दूं कि हम लोग प्रीवियस डे क्लास याद करो, वहां पर किस तरह से कैलकुलेशन हुआ है। मैंने 5 ट्रेडर में आपको बताया था, तो यहाँ पर 5 की जगह अगर 5 लाख ट्रेडर भी आ जाता है तो ऑब्वियसली हिसाब थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अच्छा, द रूपी वैल्यू ऑफ लॉस वुड बी, तो कितना लॉस हो जाएगा आपका ओवरऑल मार्केट का देखो, तो 25,59,375 और 200 पॉइंट में लॉस है, तो ओवरऑल लॉस कितना हो जाएगा सर, इनटू कर दो। 25,59,375 के साथ 375 के साथ आपको 200 को इंटू करना है, तो ये टोटल वैल्यू का लॉस है। अब सिमिलरली 7,800 पुट ऑप्शंस में देखो आप, एक्सपायरी क्या चूज किया हम लोगों ने, 7,700, ठीक है। 7,800 पुट ऑप्शन चूज करो, तो अगर आप 7,800 पुट स्ट्राइक चूज करते हो तो आपका 100 पॉइंट का लॉस है। अब 100 पॉइंट में लॉस है तो ओवरऑल मार्केट में 7,800 का ये था आपका ओपन इंटरेस्ट,
48,64,125, तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल लॉस। ठीक है। अच्छा, अगर 7,700 में पुट ऑप्शन स्ट्राइक चूज होता है, इनका क्या हिसाब होगा? अच्छा, 7,700 आपने स्ट्राइक चूज किया था और 7,700 में एक्सपायरी हुआ, तो यहाँ पर तो लॉस कुछ हो नहीं रहा है। तो द कंबाइंड मनी लॉस्ट बाय ऑप्शंस राइटर इफ द मार्केट एक्सपायर्स एट 7,700, ये कितना हो जाएगा? अगर मार्केट 7,700 में एक्सपायर करता है तो कंबाइंड मनी कितना लॉस हो जाएगा? यहाँ पर 3 सिनारियो था, एक 7,900 का था, एक 7,800 का था पुट ऑप्शंस का, और 7,700 हमारा एक्सपायरी था। तो 7,700 पुट ऑप्शन सेलर का कोई मनी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तीनों को कॉम्बाइन किया जाए, अगर समेशन किया जाए, तो एक हो जाएगा 0, जैसे कि 7,700 के केस में, और बाकी ये दोनों अमाउंट आया 5 करोड़ 11 लाख 8 सॉरी 51 करोड़ समथिंग कुछ आ रहा है सर, कितना हो रहा है? 51 करोड़ 18,75,000, है ना? ठीक है। अब जो भी वैल्यू है आप इसको ऐड करो, ऐड करके आपको ये टोटल वैल्यू आ रहा है 99 करोड़ 82,77,000, सॉरी 99 करोड़ 82,87,500। Keep in mind that total money lost by call option seller equals to money lost by 7,700 call options seller plus money lost by 7,800 call option seller plus money lost by 7,900 call option seller. Total money lost by call option seller equals to money lost by 7,700 call option seller, 7,800 call option seller and 7,900 call option seller. Similarly, total money lost by put option seller equals to money lost by 7,700 put option seller plus 7,800 plus 7,900 put option seller. ये तभी होता है सर, ठीक है। टोटल इसी तरह से काउंट होगा। अब यहाँ पर रुको सर, अभी मैं आपको क्या बोला सर, थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखना धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगा, यानी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा चिंता में पड़ रहे हो। ये तो एक प्रोसेस हो रहा है सर, और कुछ नहीं। देखो, अब एज्यूम करो कि मार्केट एक्सपायर करेगा 7,800 में, तो अगर मार्केट 7,800 में एक्सपायर करता है तो कॉल ऑप्शन सेलर का क्या होगा? 7,700 में जो 7,700 स्ट्राइक चूज किया है वो कितना लॉस करेगा? 100 पॉइंट्स, सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दो ओपन इंटरेस्ट के साथ। बोथ 7,800 एंड 7,900 कॉल ऑप्शन सेलर वुड नॉट लॉस मनी। सही है कि नहीं बोलो? 7,800 और 7,900 क्या इनको लॉस होगा? 800 তে হবে না, মানে ব্রেক ইভেন হবে। हाँ वही, 800 में नहीं होगा, 900 में होगा, না না 900 में भी नहीं होगा। तो इन दोनों केस में ये पैसा लॉस नहीं करेगा। तो फिर क्या हिसाब आ रहा है? 7,700 एंड 7,800 पुट ऑप्शन सेलर ये भी लॉस नहीं करेगा। 7,700 एंड 7,800 का भी कोई पॉइंट लॉस नहीं होगा। 7,900 पुट ऑप्शंस, इनका 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा पुट ऑप्शंस पे, क्योंकि मार्केट 7,800 में एक्सपायर करेगा तो 7,900 पुट ऑप्शंस में 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो ओपन इंटरेस्ट के साथ तो आपका रूपी वैल्यू में लॉस मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो कंबाइंड लॉस फॉर ए ऑप्शन सेलर व्हेन मार्केट एक्सपायर 7,800, ये आपका हिसाब बनेगा। सिमिलरली और एक स्ट्राइक था हम लोगों के पास 7,900 का, इसको भी एक बार देख लो सर। 7,900 अगर मार्केट में एक्सपायरी आता है तो 7,900 में अगर एक्सपायरी होता है तो 7,700 कॉल ऑप्शन सेलर 200 पॉइंट लॉस करेगा। तो 200 पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट के साथ इंटू करके रूपी वैल्यू निकालो। 7,800 को भी 100 पॉइंट का लॉस होने वाला है ना, क्योंकि मार्केट 7,900 में एक्सपायर कर रहा है। तो 7,700 में भी लॉस, 7,800 में भी लॉस। 7,900 वाला जो है, ठीक है, वो अपना प्रीमियम को रिटर्न करेगा, लॉस नहीं है। Since market expires at 7,900, all the put option seller would retain the premium receipt. क्योंकि मार्केट 7,900 में एक्सपायर कर रहा है तो पुट ऑप्शन सेलर को अपना जितना प्रीमियम वो रिटर्न किया था वो उनको रिटर्न कर पाएगा। तो कंबाइंड लॉस हो जाएगा
इतना सा, ये जो 2 पॉइंट आया है। So at this stage we have calculated the total rupee value loss of option seller at every possible expiry level. अब इसको थोड़ा सा टैबलेट में बनाते हैं, चलो। सर बेसिक से ही जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, बेसिक से ही जुड़ा हुआ है कि कॉल पुट का बेसिक्स जो है ना, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो 7700 स्ट्राइक, 7800 स्ट्राइक एंड 7900 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक हम लोगों ने लिया था। तीनों का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को पता था, कॉल का भी पुट का भी। हम लोगों ने ये भी देखा कि 7700 स्ट्राइक में, ठीक है, कॉल का लॉस कितना था, 0 था, है ना। 7800 में लॉस वैल्यू ऑफ कॉल्स इतना आया था, 7900 में कॉल का लॉस इतना आया था। पुट का भी क्या था, 7900 जब था उसका लॉस वैल्यू 0 था, और बाकी दोनों में ये लॉस आया था, ये लॉस आया था। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट किए सर, और कुछ नहीं। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है सर, टोटल लॉस को फाइंड करना है, 7700 में, 7800 में और 7900 में। इधर आपका आया 99 करोड़ 82 लाख 87,500, 43 करोड़ 82 लाख 77,500 एंड ये कितना हो रहा है 70 70 करोड़, हाँ कितना हो रहा है बोला, 70 कोटी 95 लाख ना, 709 करोड़ शायद, 709 करोड़ हो रहा है क्या, 53 लाख 75,000। हाँ 709 करोड़ 53 लाख 75,000 ऐसा वैल्यू आ रहा है सर। ये जो लास्ट वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, दिस वन। तो 3 स्ट्राइक था, तीनों स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट किया, पॉसिबल रुपी में लॉस को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लॉस है 7800 में। नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द कंबाइंड लॉस ऑफ द ऑप्शंस राइटर would expires at various expiry level, we can easily identify the point at which the market is likely to expire. मार्केट एक्सपायर करेगा किस पॉइंट पे, ये सिनेरियो आपको सजेस्ट कर सकता है। So as per the option pain theory, the market will expire at such point where there is least amount of pain to the seller. तो इन तीनों केस में लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन है ना, लीस्ट पेन कहां हो रहा है, 7800 में हो रहा है। The point happens to be 7800 where the combined loss is 43.82 crore which is much lesser compared to 7,700 and 7,900 का जो लॉस है उससे काफी कम है। तो ये सजेशन मार्केट देता है मैक्स पेन थ्योरी के थ्रू से कि जहां पर सेलर को मिनिमम लॉस है वहां पर मार्केट एक्सपायर करेगा, इसका चांसेस ज्यादा है। द कैलकुलेशन इज सिंपल, इतना सिंपल है। हाउएवर यहाँ पर हम लोगों ने 3 स्ट्राइक लिया था, है ना, फॉर सिंप्लिसिटी, बट इन रियलिटी देयर आर मेनी स्ट्राइक्स फॉर ए गिवन अंडरलाइन, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर 3 स्ट्राइक लिए थे ताकि चीजों समझ में आ जाए, लेकिन रियल लाइफ में आपके सामने बहुत सारे स्ट्राइक पॉइंट होते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन को भी ओपन करके देखो, है ना, आपके सामने कितना अलग अलग ऑप्शन स्ट्राइक लेवल आ जाता है ना। देखो सर कितना सारा अलग अलग स्ट्राइक लेवल है आपके सामने, ढेर सारा। आईटीएम में, ओटीएम में, एटीएम में बहुत सारा स्ट्राइक लेवल आपके सामने अवेलेबल होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर तब क्या किया जाए। तो यहाँ पर एक हिसाब है, चलो मैं आपको थोड़ा, एक्सेल का काम है सर, ठीक है। आप लोग एक्सेल में अपना एक्सपर्टीज बढ़ाते रहो, ये मैंने बहुत बार क्लास में बोला आप लोगों को, जरूरत पड़ने से एडवांस एक्सेल भी सीख लो, ठीक है। आजकल बहुत चल रहा है सर एडवांस एक्सेल का नॉलेज, तो मेरा सजेशन रहेगा आप सबको कि आप लोग एडवांस एक्सेल सीखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी सीखो, पर सीखो, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शंस का पेन वैल्यू 10th में 2016 का लिया गया है और इसको एक्सेल में पुट किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने 3 पॉइंट को कैलकुलेशन किया, सिमिलरली हर स्ट्राइक पॉइंट का टोटल वैल्यू को लिया गया है। स्ट्राइक लेवल,
ठीक है, 7,000 से लेकर 8,600 तक का है, कॉल ऑप्शंस का, पुट ऑप्शंस का, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, क्यूमुलेटिव कॉल, क्यूमुलेटिव पुट, ठीक है, जिस तरह से आपने वहां पर 3 में देखा था, और इसमें टोटल वैल्यू। तो फॉर द अवेलेबल स्ट्राइक्स, फॉर ऑल द अवेलेबल स्ट्राइक, वी assume market would expire at the point and then compute the rupee value of loss for call options as well as put option seller, and this value is shown in the last column, ठीक है, ये लास्ट कॉलम में दिया गया है, जिसको टोटल वैल्यू बोला जा रहा है। वंस यू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू, वी सिंपली हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट एट व्हिच द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इज लॉस्ट बाय द ऑप्शन सेलर। इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, इसीलिए आप लोग को करना क्या है सर, ये डेटा ना आपको ऐसे भी एनएसी साइट पे काफी सारा डेटा अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, आप वहां से ना डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव करके एक्सेल में पुट कर दो। ऐसे मुझे पता है तौथा करता है एक्सेल का काम, ठीक है, और भी काफी लोग करते हैं एक्सेल का काम, मैं देखा हूँ, ठीक है, सुना भी हूँ। तो जो भी एक्सेल में करता है उनको पता होगा। अब करना क्या है सर, आप डेटा को रिट्रीव करके एक्सेल में पुट करो, ठीक है, एक्सेल में पुट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ग्राफ चार्ट में आप कन्वर्ट कर दो, है ना। हर एक्सेल सीट के अंदर आपको देखना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का भी रहेगा, तो आप बार चार्ट में एक ओपन करो, तो आप वहां पर डेटा को पुट करके, ये एडवांस एक्सेल में यही सब सिखाया जाता है, एडवांस एक्सेल में यही सब सिखाया जाता है कि आप किस तरह से डेटा को एनालिसिस करके लगा सकते हो। तो आपके लिए भी सुविधा होगा आइडेंटिफाई करना कि किस पॉइंट पे मिनिमम लॉस हो रहा है सेलर को, ठीक है। तो सेलर का मिनिमम लॉस माने बायर का मैक्सिमम पेन। तो 7,800 इस तरह से बार ग्राफ भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर मिनिमम लॉस हो रहा है मार्केट में। So as you can see, 7,800 strike point at which options writer would lose at least amount of the money. So as per the option pain theory, 7,800 is where the market is likely to expire for the May series. तो मे का जो एक्सपायरी यहाँ पर लिया गया था, उसमें चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट 7,800 पॉइंट में कंप्लीट होने वाला है, चांसेस इज वेरी हाई। So now that you establish the expiry level, आपने ये एक्सपायरी लेवल क्या हो सकता है, आपने ये एक्सपायर मतलब एस्टेब्लिश कर लिया। सो हाउ कैन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। 7,800 में मार्केट एक्सपायर करने वाला है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब आगे का खेल है कि भाई इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। इसको यूज करने का मल्टीपल तरीका है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स यूज दिस मैक्स पेन लेवल टू आइडेंटिफाई द स्ट्राइक व्हिच दे कैन राइट। सबसे बड़ा चीज जो है कि सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्राइक चूज करेगा कैसे। तो मोस्ट ट्रेडर, उसके लिए ये चुनौती होता है, चैलेंज होता है कि भाई स्ट्राइक क्या चूज करें। इन दिस केस सिंस 7,800 इज द एक्सपेक्टेड एक्सपायरी लेवल, है ना, तो वन कैन चूज टू सेल द कॉल ऑप्शंस अबव 7,800 और पुट ऑप्शंस बिलो 7,800 एंड कलेक्ट द प्रीमियम। यस और नो, क्या यही करेगा ना। अगर आपको पता लग जाए कि 7,800 में मार्केट एक्सपायर करेगा, तो एज ए कॉल ऑप्शंस राइटर आप 7,800 के अबव का करोगे, और एज ए पुट ऑप्शंस आप 7,800 के नीचे का करोगे सेलिंग। सर कॉल कब सेल करते हैं, ये बेसिक्स है। कॉल सेल करने का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट बेयरिश होगा, ठीक है। और पुट सेल कब करते हैं, मार्केट अप होगा, है ना, जब मार्केट बुलिश रहेगा। ये ना भूले सर, अगर आप ये भूल जाओगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक बातें हैं, मैं फिर से बेसिक स्टार्ट करूंगा, बहुत लोगों को बेसिक पढ़ाना बाकी है मेरा, सबको पहले ही एडवांस करा दिया। अच्छा ठीक है चलो। सो कॉल सेल और पुट सेल कब करना है, क्यों करना है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए मार्केट का, ये बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट है सर। समझ में आ जाए ना तो ये बहुत इजी है। तो बोथ केस में आप सेलर बन रहे हो तो प्रीमियम कलेक्ट करोगे। कुछ मॉडिफिकेशंस भी आ सकता है, जैसे कि इनिशियल डेज में क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई फर्स्ट टाइम करता है ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत तो होता है, एक्सपायरी लेवल आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। और मार्केट आप सोच रहे हो कुछ और मार्केट किसी दूसरे पॉइंट में खत्म हो रहा है ना, शॉकिंगली मार्केट वुड एक्सपायर एट सम अदर पॉइंट और लॉस हो जाता है। तो फिर लोगों को क्या लगता है, ट्रेडर को, तो फिर क्या मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो क्या थ्योरी में फ्लॉ है क्या,
नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है सर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ऐसा जब भी ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, वो मैक्सवेन कॉन्सेप्ट तो देख लिया, बेसिकली प्लस माइनस का खेल है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा को आइडेंटिफाई करना है, उसको प्लस माइनस करके पूरा खेल को कंप्लीट करना है, टोटल वैल्यू को। फिर जहां पर मिनिमम लॉस होता है उस वैल्यू को लेके आपको चूज करना है। तो क्या कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया? अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो आप लॉस खा जाते हो, क्योंकि आपका स्ट्राइक सिलेक्शन गलत हो जाएगा, आपका स्ट्राइक सिलेक्शन गलत हो जाएगा, है ना, एज ए कॉल एज ए पुट दोनों केस में। तो फिर आपको लगता है कि भाई तो फिर क्या मैंने गलती कर दिया? तो इवेंचुअली इसको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज किया जाता है। ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर बेस करके आप चूज कर सकते हो। आप कैसे इम्प्रोवाइज करोगे? एज पर योर रिस्क एपेटाइट। मैं बहुत बार रिस्क एपेटाइट क्या होता है बताया। रिस्क एपेटाइट इन द सेंस कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो, कि भी क्या बोलते हैं एवर्स, लॉस एवर्स, माने आप बहुत ज्यादा बात बात में एग्रेसिवनेस नहीं दिखाते। अच्छा चलो ठीक है, कूल माइंड में धीरे धीरे करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ओपन इंटरेस्ट का ना कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हर दिन ऑलमोस्ट चेंज होता है ना। ये मैंने आपको कल भी बता रहा था। दिस मीन्स द ऑप्शन पेन कुड सजेस्ट 7800 एज द एक्सपायरी लेवल ऑन 10th ऑन मई। जैसे ये एग्जाम्पल जब हम लोग बना रहे थे, ये वाला, ये जो एग्जाम्पल जब बनाया गया था सर, तब का डेटा है। So open interest value change every day. This means the option pen could suggest 7800 जो एक्सपायरी हम लोग यहाँ पर लिए थे 10th मई को, ये मैं वेरी वेल सजेस्ट 8000 ऑन 20th में। 7800 अगर 10 मई को है, 8000 हो सकता है 20 मई को, है ना। और पर्टिकुलर डे द मंथ टू रन दिस कंप्यूटेशन, I prefer doing this when there were 15 days to expiry. The point is that कि अगर आपके पास एक्सपायरी टाइम है, ठीक है, तो फिर आपका हिसाब बदल सकता है। माने एक्सपायरी 10th मई को है कि एक्सपायरी 20th मई को है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका कंप्यूटेशन भी बदल जाएगा, है ना। बदलेगा कि नहीं एक्सपायरी? जैसे आज ही सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग में क्या ये बता रहा था अपना पीयूष कि सर एक्सपायरी मैंने गलत चूज कर दिया था। तो समझ में, जैसे प्रॉफिट किया उसने, बट फिर भी एक्सपायरी के चक्कर में उसका थोड़ा दिक्कत हो रहा था। एक्सपायरी वैल्यू एज पर द रेगुलर ऑप्शन पेन मेथड, ठीक है, ये बढ़िया रहता है। नॉर्मली ऑथर का सजेशन ये है सर, 5% सेफ्टी बफर लेके चलना चाहिए। 5% सेफ्टी बफर माने होता है इमरजेंसी के लिए रेडी रहना, ठीक है। बफर स्टॉक नॉर्मली कॉस्टिंग में यूज होता है बहुत, ठीक है। सेफ्टी बफर, सो एट 15 days to expiry the theory suggests 7800 as expiry, then I would add 5% safety buffer. This would make the expiry value 7800 plus 5% ऐड कर दो, माने चांसेस इज वेरी हाई कि 7800 में 5% माने 8200 स्ट्राइक आप चूज कर सकते हो। 8190 और 8200, अगर मार्केट 15 दिन बाकी है एक्सपायरी में, अगर टाइम कम है तो आप थोड़ा कम ही लो। बात समझ में है सर? 5% सेफ्टी बफर क्यों? जब एक्सपायरी में टाइम रहता है तो चांसेस है कि मार्केट और ज्यादा हाई जा सकता है, 7800 की जगह 5% और एक्स्ट्रा मूव कर सकता है। ऐसे सिचुएशंस में आप 8190 या 8200 आपका स्ट्राइक चूज कर सकते हो, जो आपके लिए मे भी बेहतर साबित हो सकता है। ये डिपेंड करता है सर, ये जो थ्योरी है ना, ये ट्रेडर एक्सपीरियंस बेस्ड थ्योरी है, बट फिर भी आप इसको रिसर्च करके खुद का भी टेक्निक निकाल सकते हो। सपोज यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू एक्सपायर एट एनी पॉइंट बिटवीन 7800 से 8200, I would set up strategies keeping this expiry range in mind. My most favorite being the right call options beyond 8200. आप कॉल ऑप्शंस लो 8200 के ऊपर, ठीक है। अवॉइड पुट राइट पुट ऑप्शंस फॉर दिस सिंपल बिलीफ पैनिक स्प्रेड फास्टर देन ग्रीड। ये बात याद रखना सर, पैनिक हमेशा ग्रिड से ज्यादा स्प्रेड करता है। दिस मींस मार्केट कैन फॉल फास्टर देन इट कैन गो अप, है ना। ग्रीड माने क्या होता है? मार्केट में जब एक्सपेक्टेशन होता है, बुलिश एक्सपेक्टेशंस होते हैं या जो भी हो, माने आप बेसिकली देखोगे कि मार्केट में आप होता है जब मार्केट में लोग बाइंग पोजीशंस लेते हैं, लेकिन मार्केट जब फॉल करता है धड़ाधड़ करता है। कल का ही मार्केट देख लो, कल का ही मार्केट देख लो, जिस हिसाब से मार्केट में ग्रोथ आया था, डोंट यू थिंक इसका फॉलिंग उससे ज्यादा तेज हुआ? ग्रोथ जितना, हाँ
যে 1 উইক লেগেছে মার্কেট আপ হতে আর 3 দিনে মার্কেট নামিয়ে দিয়েছে দেখুন। वही सर, यही चीज बताना चाह रहा है। ग्रोथ होने में 1 हफ्ता लगता है, 3 दिन में मार्केट स्टीप फॉल कर जाता है। और यही चीज है, पैनिक फास्टर ग्रोथ करता है। ये चीज आप बार बार मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे। तो कुछ बातें ना आपको अपने आप में एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस बताएगा, हर चीज ना किताबों में लिख के नहीं बताया जा सकता। सीरियसली सर, जिंदगी का हर पहलू किताब से नहीं मिलेगा आपको। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बार बार एक चीज बहुत कहते थे कि एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर इन आवर लाइफ। तो किताब तो है, ठीक है, किताब से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, उसको एप्लीकेशंस भी काम पे लाएंगे, बट काफी सारा चीज ना आपको रियल लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक्सपीरियंस करने से डरो मत। ये मैं सजेशन हमेशा करूंगा सर कि अगर स्टार्टिंग में आपको मिनिमम से मिनिमम लेवल का काम करना पड़े, जो भी आपका करियर हो, बट आपको करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ना तो डरना चाहिए, ना तो वो क्या होता है ना, एक लोगों को होता है ना, देखो मेरे को क्या काम दे दिया, इससे बेहतर कर सकता हूँ। अरे भाई, जो मिल रहा है उसको करो, ग्राउंड लेवल से करो। मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई काम ग्राउंड लेवल से सीखोगे ना, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक एंटरप्रेन्योर को सोचो, ठीक है, जैसे आप लोग, बहुत एग्जाम्पल है ऐसा। एक्सपीरियंस क्या चीज होता है आपको मैं वही बताऊंगा। जैसे আমান গুপ্তা हाँ बोलो सर। আমান গুপ্তাও তো প্রথমে সেলসের কাজ করতো। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल लिया तूने, अमन गुप्ता, ठीक है, सेल्स ही किया है। ये जो बोट है ना, ये बोट में थोड़ी ना वो टेक्नोलॉजी लगाया, आजकल रिसर्च का टीम बनाया है, ठीक है। उसमें वो R&D करके अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। पहले वो चाइना से लाता था, पैकेज करता था, सेल करता था, पूरा मार्केटिंग में फोकस किया। ऐसे तो वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको तो लगना चाहिए कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर सेल्स का काम कैसे कर सकता हूँ। वो बोल ही सकता है ना, मैं तो बॉस बनूंगा, हाँ, एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठूंगा और लोगों को बस साइन करके दे दूंगा। हाँ, उसमें वो कर सकता था, लेकिन वो काम में वो आज अमन गुप्ता ना बनता, आज बोट ना बनता। इट्स ऑल डिपेंड सर। वही वही बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि इंसान को ना हर चीज को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और उसके ऊपर बेस करके स्टेप्स लेना चाहिए। और अंदर से ना वो, कुछ लोगों ना होता है, नहीं नहीं ये नहीं कर सकता मैं। अरे भाई, हर काम के लिए रेडी रहो, जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। अच्छा एग्जाम्पल तुमने उठाया ऋषभ, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा टीचर है सर। वो जो सिखाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और देखो, उस अमन गुप्ता का बात किया तो उसके अंदर ऑलरेडी फाइनेंस का नॉलेज, तो मैंने फाइनेंस का कीड़ा तो था ही, उसका अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग तो उसके अंदर था ही। और साथ में देखो, सेल्स का जो एक्सपर्टीज है उसको डेवलप किया। डेवलप माने वो उसके अंदर एक था ही, तभी वो एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा। तो सेल्स प्लस फाइनेंस प्लस टैक्सेशन प्लस कॉस्टिंग सब मिलजुल के बन गया अपना कंपनी। तो वो हर चीज, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ। 7 वेंचर के बाद मोस्ट प्रोबेबली 8 वेंचर में वो बहुत पैसा नष्ट किया। वो एक दिन बता रहा था कि एक टाइम आया था, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उसका नौकरी वगैरह वो कुछ नहीं कर रहा था, वेंचर वगैरह सब खत्म हो गया था, बहुत सारा वेंचर में लॉस हो गया। फिर उसका वाइफ बेसिकली उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। एक दिन बता रहा था, एक इंटरव्यू में सुन रहा था। तो होता है सर, होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका वाइफ सबको सपोर्ट करे, इट्स नॉट लाइक दैट। बट सबका कहानी अलग अलग होता है सर। सबका कहानी अलग होता है। सब कहानी एक होता ना तो ऊपर नॉवेल नहीं बनता। ये जो उपन्यास होता है ना, उपन्यास नहीं बनता। सब कहानी एक नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको रेडी रहना चाहिए, है ना, हम सबको रेडी रहना चाहिए। अच्छा देखो, तो स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी रेंज दिमाग में रखना है। अच्छा, ये ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं बोला। पुट ऑप्शंस का सिंपल बिलीफ है, पैनिक स्प्रेड फास्टर देन ग्रीड, देन दिस मींस मार्केट्स कैन फॉल फास्टर देन इट कैन गो अप। तो ये एक चिंता रखना दिमाग में। आई वुड होल्ड द ऑप्शन सोल्ड अप टू एक्सपायरी एंड वुड यूजुअली अवॉइड एवरेजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। माने ये डिपेंड करता है सर लोगों के ऊपर कि वो एक्सपायरी तक होल्ड करेगा कि पहले ही अपना खत्म करेगा, ठीक है। तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं सर जो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड करता है, मैंने ऐसा ही कुछ चीज पहले से चूज करता है तो एक्सपायरी तक होल्ड करेगा और बीच में एवरेजिंग करना पसंद नहीं है। तो डिपेंड करता है, कोई बोलेगा नहीं सर हमको एक्सपायरी तक तो डर लगता है क्योंकि वोटलेस हो सकता है। तो ये अभी डिपेंड करता है मैन टू मैन, ठीक है, कि वो क्या करेगा।
The results were much better when I followed this method. Unfortunately, I never tabulated the results since I cannot quantify my gains. However, if you come from a programming background, you can easily back this logic and share the result with the rest of the community. ये बेसिकली एक चीज यहाँ पर ऑथर बताना चाहा है सर कि आप जो भी डेटा यहाँ से एनालिसिस कर रहे हो ना, ये डेटा एनालिसिस को आप किस तरह से लोगों के सामने रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दिया कि आप चाहो तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो एडवांस एक्सेल के ऊपर बेस करके ये सब डेटा के ऊपर काम कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज यहाँ ऑथर ने बोला कि जैसे यहाँ पर 5% बफर के बारे में बोला था, ठीक है, कि आप 7,800 की जगह 5% और बफर कर दो, ठीक है, 8,190 या 8,200 को चूज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया था। तो यहाँ पर और एक बात कर रहे हैं सर कि taking to strikes which were approximately 1.5 to 2% standard deviations away, which means the probability of market moving beyond the expected expiry level was about 34%. मैंने कहना ये था कि स्टैंडर्ड डेविएशंस भी यहाँ पर बीच में आ रहा है कि मार्केट कहाँ है, ये कितना डेविएट कर रहा है, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट एवरेज में किस पॉइंट पे चलता है और मार्केट उस पॉइंट से अपने एवरेज से कितना हटता है, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशंस पढ़ चुका है एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। वैसे दो बहुत तरह का डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है स्टैटिस्टिक्स में, नॉर्मल, बाइनोमियल। तो मैं जब स्टैंडर्ड डेविएशंस एक बार पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने ना स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पढ़ाया था सर आपको। तो अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है ना तो वापस एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टैंडर्ड डेविएशंस में मार्केट किस तरह से अप एंड डाउन करता है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस में देखो ना, तो टेक्निकल में एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेवल वो भी मार्केट में बहुत काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने पढ़ा था क्लास में। तो मार्केट डेविएशंस, रिट्रेसमेंट लेवल, ये मार्केट में इंपैक्ट डालता है। जो भी हो, इस पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। ये जो मैक्स पेन थ्योरी है, ये मैक्स पेन थ्योरी का अगर सिंपल बोला जाए तो मैक्स पेन थ्योरी और कुछ भी नहीं सर। मैक्स पेन थ्योरी बेसिकली आपको ये बताता है कि किस पॉइंट पे मार्केट में मिनिमम राइटर जो है मिनिमम लॉस एक्सपीरियंस करता है। चांसेस इज दैट कि एक्सपायरी में मार्केट उस पॉइंट पे खत्म होगा। चांसेस इज दैट कि मार्केट उस पॉइंट पे खत्म होगा एक्सपायरी, ये चांसेस बढ़ता है। बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आया? ये सर नो, एक बार घर पे ना प्रैक्टिस करना सर। ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 है ना, इसको एक बार ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना। और हो सके तो एक्सेल सीट में कोई भी रेसेंट डेटा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों को ये जितना सारा स्ट्राइक है, सिमिलरली आप 4-5 स्ट्राइक लो, ठीक है। करंट डेटा से लो, निफ्टी से ले लो, एक्सपायरी एक पर्टिकुलर चूज करो, ठीक है। 15 दिन का एक्सपायरी ले लो, 15 डेज का। आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे उसके बाद वाला थर्सडे ले लो, 15 डेज का एक्सपायरी ले लो। अच्छा, कोई अगर 7 दिन का भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सपायरी चूज करो, निफ्टी को लो, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके 3 या 4 स्ट्राइक पॉइंट लेके आप ना सिमिलर कैलकुलेशन करके ग्रुप में बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि सर मिनिमम मैक्सिमम पेन पॉइंट किस पॉइंट पे हो रहा है जहां पर सेलर को मिनिमम लॉस हो रहा है। ओके, और अगर बफर भी लोगे तो कितना बफर ले सकते हो, और उसके ऊपर आप देखो कि मार्केट सच में किधर जा रहा है। और उसके लिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको एनएससी के साइड से एज वेल एज सेंसिबल वगैरह में मिल जाएगा। ना मिले तो मैं ग्रुप में बता दूंगा कैसे मिलेगा। एनएससी में जरूर मिलता है सर। सर বোঝা গেছে? আচ্ছা, আজকে স্যার ম্যাক্স পেন আছে 19,750 मैक्स पेन 19,785। 50 750 आप स्टॉक से ताई शो करते देखते। ये देखो सर, यहाँ पर ना बैंक निफ्टी का 21 सितंबर का ओपन इंटरेस्ट देखो, 21 का एज वेल एज 20 का दे के रखा है, ठीक है। इस तरह का आपको ना हर एक स्ट्राइक पॉइंट का अलग अलग हिसाब मिलेगा, ठीक है। ये देखो, राइज इन ओपन इंटरेस्ट एंड राइज इन प्राइस, राइज इन ओपन इंटरेस्ट, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओपन इंटरेस्ट, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओपन, राइज इन प्राइस। तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो डेटा को, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आपको मिलेगा, नहीं मिले तो मुझे बताना या ग्रुप में डिस्कस करना, आप लोग खुद बहुत सारा रिसर्च करते हो। लेकिन স্যার প্লিজ ये হোমওয়ার্ক मेरे को जरूर बताना ম্যাক্স পেন। সবাই বুঝতে পেরেছে ম্যাক্স পেনের কনসেপ্টটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার, তো ফির নেক্সট দিন আমরা পুট কল রেশিওতে ডিসকাশন করব, এটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট, পুট কল রেশিও। নেক্সট দিন ডিসকাস করছি আমি কালকের ক্লাসে, আজকে এতটাই রাখলাম। ওকে ওকে স্যার। ওকে স্যার, ওকে স্যার, বাই তাহলে। রাখছি স্যার। রাখছি স্যার, বাই বাই স্যার। বাই স্যার, বাই। রাখছি স্যার। ওকে দাদা, বাই।